And now shifting our focus to a major jolt to Aam Aadmi Party. Raghav Chadha led the political quake against Arvind Kejriwal, once his mentor. Many know Raghav to have been Kejriwal's key confidant and party strategist. Today, his strategy was merging with the BJP, not alone, with 6 others from RS, which means that he and others would not stand disqualified because of the 2/3 strength of the merger. His parting shot, I was a right man in the wrong party. Listen in. आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो कागज होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। And seated next to him were Sandeep Pathak, considered Kejriwal's blue-eyed boy, former IIT Delhi professor, a numbers person, key role in electoral math. Then Ashok Mittal, from Lovely Professional University, founder and chancellor, family runs famous Lovely Sweets. He was the one who replaced Chadha as deputy leader of AAP in Rajya Sabha, and he joined BJP 10 days after ED raids at his residence. The others include Swati Maliwal, Harbhajan Singh, Vikram Shane, Rajendra A. Gupta. Most of them with critical influence in Punjab, one of the seats gearing up for assembly elections next year. AAP within minutes shot back, accusing Raghav Chadha and 6 others of being traitors and tearing into BJP for Operation Lotus ahead of Punjab elections. मित्तल जी के यहाँ छापा कब पड़ा था भैया? आप ही लोगों ने तो खबर चलाई थी, बताइए कब पड़ा था? राघव चड्ढा भी दबा। अरे भैया, आप मेरे सवाल का आप जवाब नहीं, कब पड़ा था छापा? 3 दिन पहले। और अभी कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सवाल तो बीजेपी वालों से पूछिए ना, पूछिए। कल तक जिस पे ईडी का छापा मार रहे थे, आज वो बीजेपी में है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस है। हरभजन सिंह के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं पड़ा, राघव चड्ढा के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं पड़ा। कुछ को दिखाया जाता है, कुछ को डराया जाता है। तो डर से गए। एक के गर्दन पे छुरी लगाई, बाकी को कहा तेरे पे लगा देंगे छुरी। यही होता है ऑपरेशन लोटस। और क्या होता है? Now, an allegation the opposition has repeatedly raised ahead of elections. Sanjay Singh talked about how BJP used central agencies, referring to the ED raided on premises linked to Ashok Mittal under FEMA. They alleged that this was a massive betrayal and BJP conspiracy, timed it to stabilize the Bhagwat Mann government ahead of 2027 polls. पार्टी ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਠਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 6-7 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਦਾਰ ਨੇ। ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਪਏ, ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਬਸ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆ, ਉਹ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਸ।
And now earlier, around mid-April and soon after, Raghav Chadha was removed from the post of Deputy Speaker and Punjab had withdrawn his security, the Aam Aadmi Party had accused him of colluding with BJP, particularly after he was granted Z category security by the centre. BJP leaders hailed it as a call of conscience and biggest political coup against AAP, boosting their Rajya Sabha numbers. अरविंद अकेले की पार्टी बन गई, अरविंद अकेले की पार्टी। और कितने नेता निकल के गए, योगेंद्र यादव, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, आशुतोष, अलका लांबा, राजेंद्र पाल गौतम, इनमें से कई नेता तो अलग अलग पार्टीज में चले गए, कांग्रेस चले गए, वो भी ऑपरेशन लोटस था। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये पार्टी जन्मी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, जन लोकपाल के लिए लड़ने के लिए, आरटीआई जैसे मुद्दे उठाती थी। परंतु वो जो वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ जन्मे थे, शीश महल बनाकर बैठे, शराब घोटाला करके बैठे, सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता दिल्ली और पंजाब में इनके नेता थे। तो इसीलिए जब वो सिद्धांत से हटे तो अनेकों नेता केजरीवाल से हटे, पर अपने अंदर की खोट देखने के बदले आज फिर से दोषारोपण कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी जो मंडली है। मुझे लगता है ये दिखाता है कि अब भी नहीं समझ पाए हैं कि असली कारण क्या है। देखो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सुचेत रहे। ऐसा ना हो कि आपके 50 विधायक एक दिन में ही बदल जाएं, ये तो सांसद गए हैं। जब पार्टी इस तरीके के फैसले लेगी, कोई मापदंड नहीं होगा जब उनको राज्यसभा बनाया गया, तो फिर ऐसा तो होना ही था, ऐसा तो संभव था ही। क्योंकि जब विचारधारा नहीं है, आप लोग पैसा देखकर, बड़ी इंडस्ट्री वाला देखकर, बड़ा कारोबारी देखकर आप लोग जब राज्यसभा मेंबर बनाओगे और उनसे कई तरीके की मदद लोगे, तो ऐसा तो संभव है, ये होना ही था। राघव चड्ढा को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी टारगेट कर रही थी, तो ये स्वाभाविक ही था, इसमें कोई नई बात नहीं लगती। और लेकिन अगर उनके कुछ सांसद भी आ रहे हैं तो उसका हम स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के पर्यायवाची बन चुके हैं। लूट का शासन दिल्ली में उन्होंने किया, अब पंजाब में कर रहे हैं। पंजाब की जनता के ऊपर जो पैसा खर्च होना चाहिए, वो पैसा गुजरात, गोवा में अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए वो कर रहे हैं। इस बात जग जाहिर है और कई सब लोगों को मालूम है। और राघव चड्ढा या बाकी लोग अगर उनके भ्रष्टाचार में उनका सहयोग नहीं करना चाहते हैं, जैसा उनके बयान से लग रहा है, तो मेरा मानना यह है कि हर वो आदमी जो व्यक्तिवादी पूजा में विश्वास नहीं करता, वो वहाँ रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के शासन में तो एक ही बात चलती है कि उन्हीं की मानो और उन्हीं की आपको हामी लाना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरह का काम हो रहा है तो मुझे लगता है ये शुरुआत है, इससे बड़ी टूट होने की संभावना है। अब जो लोग भी जा रहे हैं, आप जान रहे, सब लोग कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। जो डरा है भाजपा में गया है, जो बिका है भाजपा में गया है, जो संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है देश के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, वो लोग भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। अब तो लोगों को भी, आम आदमी पार्टी हो या सब लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हों उनको हम लोग पहचानने का काम करें। प्रधानमंत्री जो आइडियोलॉजिकली जो जुड़ा हो, अब ऐसे तो भाजपा ईडी सीबीआई लगा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया जेल में थे तो ये लंदन में थे, सब लोग जान रहे थे उसी टाइम जो है भागे हैं या भगाए गए हैं, चाहे जो भी बात हो। तो देखिए फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, लोगों की असलियत जो है वो सामने आ रही है। Well, once the dust of this move settles down, what does this mean for AAP, BJP and Punjab elections due in 2027?